آپ کو معلوم ہونا چاہیے اولڈ سٹی میں زیادہ فیل ہونے والے بچے تیلگو میں ہیں، حالانکہ ایک ہی ٹیچر کریکشن کرتا ہے، اس کو اتنا بھی رام نہیں آیا کہ بچے ایک نمبر سے فیل ہیں اور ایک ہی آدمی میں اور کوئی گریس مارکس نہیں، اور حالانکہ وہ اگینسٹ دا مدر ٹنگ تیلگو سیکھ رہا ہے، اس کے اوپر تھوڑا رحم ہونا چاہیے، لیکن رام تو نہیں بلکہ اس کا قتل کیا جائے. صحیح بات تو ہے، ایمان کی بات ہے. آپ رینکرز اٹھا کے دیکھ لیجیے، ڈیو ٹو تیلگو وہ اپنا رینک 100% میتھمیٹکس اور سائنس میں لانے کے باوجود بھی انہیں اپنا رینک کھو چکا، مطلب کہ اردو میں. اور رہی بات، ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور مطلب ہے کہ تھوڑا سا پرائیویٹ اسکول پر. اب رہی بات جو ریکگنائز اسکول ہے، اب دن بدن ریکگنائز اسکول، تعجب کی بات یہ ہے کہ جو آلریڈی اسکول 10th کلاس تک ریکگنائز ہے، ٹھیک ہے، اب جب انہیں 1st to 5th فائل داخل کرنے جاتا پھر سے اس کو وہی رولز لاگو کیے جا رہے ہیں جو پہلی مرتبہ ریکگنائز کے لیے جاتا ہے. اور دوسری بات، آپ بولتے ہیں کہ گورنمنٹ بولتی ہے تعلیم کو عام کیجیے، 8th کلاس تک بغیر کسی کے ایڈمیشن لیجیے. نہیں، ہر بچے کو پڑھانا کمپلسری ہے. اگر کوئی اسکول والا کسی بچے کو ایڈمیشن لے لیتا اس کو بھی جیل، چلیے ٹھیک ہے، اسکول کو جیل خانہ بنا دیجیے، چاہے آپ پولیس والوں کو ٹھہرا کر دیجیے، اسکول کے کرسپونڈنٹ کو ہتکڑی میں لے کے جائیے اور اکیڈمی لائیے، سب میں بہترین چیز ہے. جس طرح جیل میں جو ہے قیدیوں کو پکڑ کے ایک جیل سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، آج کل زمانہ وہی آ گیا ہے. اور جو اسکول چلانا سب میں بڑا جرم ہو گیا، سب میں بڑا جرم ہو گیا. آپ شراب خانہ بھری آسان ہے، پر وہاں پہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک وائن شاپ والا ایک اسکول والے کے اوپر کمپلین کیا تو وائن شاپ تو نہیں ہٹی لیکن اسکول ہٹ گیا وہاں سے. واہ، ویری گڈ. اور کیا بول سکتے ہیں کہ جو ایسی مثالیں جو ہے اسکول میں ہیں. اور سب سے پہلی بات، آپ کیٹیگریز کر دیجئے اسکولوں کو ان کی فیس کے حساب سے اور ان کے اسٹرکچر کے حساب سے، ABC کیٹیگریز کر دیجئے. اور جو لوگ 1 لاکھ روپے فیس لے رہے ہیں ان کا بھی ٹیکس اتنا ہی، اور جو لوگ 200 روپے لے رہے ہیں ان کا بھی ٹیکس اتنا ہی. یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اور دوسرا، شادی خانے جو بالکل پیورلی کمرشل ہیں ان کا ٹیکس 1 روپیہ اور اسکول کا ٹیکس 7 روپے، جبکہ شادی خانے والی گورنمنٹ کو کوئی مطلب کہ ساتھ نہیں دیتے. جب الیکشن آتا ٹیچروں کو بلا لیتے، جب الیکشن ہوتا ہے اسکول سینٹرل بن جاتے، الیکشن سینٹرل بن جاتے. سروے کا کام آتا ہے ٹیچروں کو بلا لیتے، اور انویگیشن کا کام آتا ہے ٹیچرز کو بلاتے ہیں. پتہ یہ شادی خانے، ڈیری فارم، شراب خانے والوں کو آپ کیا کام دیتے ہیں گورنمنٹ، اور کیوں سہولت ہے ان لوگوں کو پتہ نہیں. اور اسکول والوں کے لیے اتنا سخت قانون سمجھ سے باہر ہے. ہاں، البتہ یہ جو فائر کا جو بھی گورنمنٹ یا کورٹ کا جو آرڈر ہے، ٹھیک ہے، آپ جو بھی گورنمنٹ کے رولز بنائے گئے ہیں جو پورے کے پورے فلفل کرتے ہیں، وہ ان کی فیس بھی اسی طرح چارج کرنے کے لیے آپ ان کو مطلب فورس کر سکتے ہیں. فرض کرو کہ جو 1 لاکھ روپے فیس لے رہا ہے اس کو بول سکتے ہیں کہ بھائی آپ فائر بھی کمپلیٹ کیجئے، پولیس کا بھی کمپلیٹ کیجئے، آپ جو ہے ہر وہ چیز کمپلیٹ کر دیجئے. نہیں، لیکن جو آدمی بالکل گلی میں اسکول چلا رہا، جہاں پہ وہاں پہ کیا بولنا چاہیے، جنازہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے، آپ وہاں پہ بولتے ہیں کہ پریزن کے لیے جگہ بنائیے ورنہ جو ہے آپ جیل کو چلے جائیے. آپ دیکھیں گے ہوٹلز کوئی پارکنگ نہیں پوچھنے والا ہے، شادی خانہ کوئی پارکنگ نہیں پوچھنے والا ہے، شراب خانے کوئی پارکنگ پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اسکول کے لیے پارکنگ کمپلسری ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ سہولت کے نام پر، میں دبے لفظوں میں اگر بولوں گا کہ کرپشن کو زیادہ کر دیا گیا. پرمیشن تو مل جاتا آپ کو، سروے کیجیے، اسکول گلی میں چل رہے ہیں اور ایسی جگہ چل رہے ہیں جہاں پہ کوئی چیز کی سہولت نہیں ہے، پھر ان لوگوں کو پرمیشن کیسے مل گیا؟ نئے اسکول کھل رہے ہیں، ان کو پرمیشن کیسا مل گیا؟ اور ایسے اسکول جو غریب بیچارے کچھ بھی نہیں پے کر سکتے، اور وہ لوگوں کو جو ہے غالباً جیل کی نوٹس آ جا رہی یا پھر فائن کی نوٹس آ جا رہی. تو یہ کہاں کا انصاف ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. اور رہی بات اسکالرشپ کے تعلق سے، میں 1-2 باتیں بولنا چاہوں گا صاحب. ایک تو اسکالرشپ، سب سے پہلی بات، جس آدمی کی تنخواہ مزدور جو لوگ ہیں 1 لاکھ اسکالرشپ کینسل ہو جائے. اور دوسری بات، کئی ایسے لیڈیز ہیں جو گھروں میں کام کر رہے ہیں اور وہ جو ہے کیا بولنا چاہیے، ان کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا پروگرام ہے پتا نہیں. جو بہت زیادہ غریب ہیں، جو مستحق ہیں، جیسے بھیک مانگنے والے ہیں، صحیح بات تو ہے، بعض دوسرے گھروں سے، دوسرے گاؤں سے مائگریٹ ہو کے یہاں پر آ گئے ہیں، جن کے پاس کوئی راشن کارڈ نہیں ہے لیکن وہ مستحق ہیں. کیا ان کے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہیے؟ بھائی جیسے مطلب کہ محمود علی صاحب کے بقول جو ہے انجینئرنگ کالج کے اندر بچوں کو سہولت دی جا رہی ہے، اور کیا بولنا چاہیے میڈیکل کالج میں بچوں کو سہولت دی جا رہی ہے مائنارٹیز کو، لیکن اسکولز کے اندر 600 روپے 800 روپے اور 300 روپے تو اس کی مزدوری چلی جاتی اور بغیر رشوت کے. یہ بالکل حقیقت ہے، آپ اس کے انکار مت کیجیے کہ بھائی آپ کو رشوت کون دے بولا، اگر نہیں دیا تو نہیں ملنے والا ہے. آپ مجھے ایک سرٹیفکیٹ نکال کے بتائیے بغیر جو ہے رشوت کیا. اس جگہ پہ جاتے ہیں پیسے
اور وہاں سے चपरासी से लेकर ऊपर तक आपको पैसे देना पड़ता है। 300 से 400 रुपए आपके इनकम सर्टिफिकेट को खर्च होते हैं, फिर भी जो है आप 600 रुपए दे रहे हैं, वो भी सता के बताए नहीं। और एक दूसरी बात, और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बात, जैसे 500 फॉर्म आप दाखिल करें, बड़ी मुश्किल से 1100, 1000 या 300, 400 स्कॉलरशिप सैंक्शन हो रहे हैं, वो भी हमको पता नहीं है कि कितने बच्चों को सैंक्शन हुआ। लिस्ट तो आपके पास आ जा रही है, लेकिन बच्चों को ये नहीं मालूम हो रहा कि इनका स्कॉलरशिप अकाउंट में उनके आ गए या नहीं आ गए। और बात केसेस ऐसे हैं कि उन्होंने रेगुलर अकाउंट दाखिल नहीं करने की वजह से उनका अकाउंट कैंसिल होगा बैंक के अंदर। उनके पास भी कोई लिमिट होती है, इतने लिमिट तक अगर आपके पास पैसे दाखिल नहीं करेंगे तो बैंक का अकाउंट कैंसिल कर रहे। तो ऐसे बच्चों के भी चेक्स कैंसिल हो रहे। वरना हम लोगों को आप देखिए, बच्चों को चेक्स ले रहे हैं लेकिन स्कूल की फीस पे नहीं कर रहे, जिसकी वजह से स्कूल करस्पॉन्डेंट के अंदर भी जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया। लेकिन आप पहले जैसा जॉइंट अकाउंट दे रहे थे स्कूल वालों के लिए चेक का, ताकि कम से कम हमको पैसे मत दीजिए, बच्चे का नाम पे चेक भेज दीजिए, हमारी सिग्नेचर के साथ। अगर क्या बोलना चाहिए, अगर बच्चे को इशू होंगे तो हमको भी उसका हिसाब किताब मालूम होगा कि कितने बच्चों को स्कॉलरशिप आए और कितने बच्चे स्कॉलरशिप अवेल किए और कितने बच्चों को हमने चेक इशू किया, कितने बच्चे हमारे पास फीस ड्यू है, ऑलरेडी स्कॉलरशिप भी लेते हैं और फीस भी ड्यू रखते हैं, फिर दूसरे स्कूल में चले जाते हैं। ये थोड़े से प्रॉब्लम थे। जो अब रही बात अरबी की, गालिबन बहुत अच्छी कोशिश है, और वैसे ये कोशिश अंडरस्टैंडिंग कुरान वाले भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स में जो है अरबी की तालीम दी जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। जो माइनॉरिटी को सीखना चाहिए, उनको भी जब तक कोई लैंग्वेज नहीं आती और कोई सब्जेक्ट परफेक्ट नहीं होता तब तक कि उसके ऊपर प्रेशर ना हो। जैसे बच्चे माइनॉरिटी के किसी सूरत से अंग्रेजी हम तेलुगु सीख रहे हैं, क्योंकि उनके मार्क्स काउंट होते। अरबी का भी मसला, अगर आप इसको इंप्रूव करना चाह रहे हैं, जिस तरह हिंदी उर्दू 40-60% या 20-30% किसी सब्जेक्ट के साथ अटैच करके जो माइनॉरिटीज है उनके लिए ये सब्जेक्ट कंपलसरी करें। अगर कोई मेजॉरिटी है, अगर विलिंगली अगर ये सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, उनको जिस तरह जो माइनॉरिटी तेलुगु के लिए विलिंगली अगर कोई आदमी लेना चाह रहा, उसको 20 मार्क्स की सहूलत है, इसी तरह से अरबी को भी अगर कंपलसरी करना चाह रहे हैं, इम्पोज कीजिए आपके हाथ में। जो हमारे लीडर्स हैं उन लोग ये इसकी नुमाइंदगी कर सकते हैं। कोई भी चीज इम्पोज करेंगे तो फिर वो सीख सकेंगे। जिस तरह अभी नोटिस आ गए, पब्लिक यहाँ जमा हुई, वरना कोई भी आदमी रिकॉग्नाइज के लिए नहीं आ रहा था। मैं आखिर में जो है आबिद रसूल खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं और क्या बोलते पूरे लोग गालिबन अगर इनको कुछ टाइम दे दें, और दूसरी बात यह है कि 1 साल 1.5 साल के लिए नोटिस कैंसिल हो जाएं, और साथ में ये सहूलत है कि सलम एरिया के लिए थोड़ा से रूल्स अलग कर दें और न्यू सिटी के लिए कुछ अलग कर दें और कैटेगराइज कर दें स्कूल्स को ABCD। तो फिर ये तमाम लोग भी कौमी धारे में शामिल हो जाएंगे। न जाने इनके स्कूल्स में से भी कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा। और माशाल्लाह अगर हो सका तो जिस तरह अब्दुल कलाम इनसे देश के तालीम हासिल करे, नहीं उसी तरह से ये कोई अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो चूल्हा डालने वालों के, बर्तन मांजने वालों के, घरों में काम करने वालों के, माशाल्लाह हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। उन लोगों ने इनको स्कॉलरशिप देने की वजह से ये लोग MBBS कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और माशाल्लाह से अल्लाह चाहे तो ये भी गरीब बच्चे जो सलम से आएंगे, अल्लाह चाहे तो ये भी इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। आखिरी में मैं 2 शेर हमेशा दुआ के लिए बोलता हूँ। अज़्म मोहकम अता कर खुदाया, हौसलों को नई जिंदगी दे, सर उठाए हर्षो अंधेरे, शब चरागों को तू रोशनी दे, तू जो चाहे तो है मेरे आका। टूटे जग सारा कश्ती बचेगी, आग में फूल खिलते रहेंगे, राह दरिया बनाती रहेगी, तेरी कुदरत में क्या कुछ नहीं है, बस हमें जज्बे बंदगी दे। या खुदा जो भी है सब तेरा है, सारी कुदरत भी अजमत भी तेरी, जानो ईमा भी दुनिया भी तेरी, मौत भी तेरी, रहमत भी तेरी, अपना कुछ भी नहीं सब तेरा है, टूट कर मिट जाए वो जिंदगी दे न क्या बोलना चाहिए भाई, बदरकी कामरानी में तू है, तू ही खैबर में अजमत की धारा, हक बातिल के हर मार्के में तू रहा गाजियों का सहारा। आज भी हर तरफ करबला है, हमको शब्बीर सी तशनगी दे, इल्म भी दे, शऊर अमल भी, सच को पहचान ले वो नजर दे, रश्क परवास पर हो जहां को, या खुदा हमको वो बाल पर दे, लाज रख ले दुआ की तो रख ले, मौत जो बस हो जिंदगी दे। थैंक यू वेरी मच। सुभान अल्लाह। जनाब साजिद साहब जो स्कूल हम देखिए, गलती तो आपकी है जो अभी तक आपने रिकॉग्निशन नहीं लिया। आपने एक और भी बात बताई, हिंदुस्तान की ये बदकिस्मती है रिश्वत के बारे में, उसके बारे में तो खुलेआम
राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि रिश्वत ऐसी है कि अगर 100 रुपये 1 रुपया सैंक्शन होता है तो 15 पैसे आदमी को पहुंचते हैं। उस हद तक करप्शन अब नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आरिफ भाई जैसे कायदीन है वो जगाते हुए अच्छा अमल कर रहे हैं बजट के ऊपर। और जब हम पहुंचे आबिद साहब के पास, उन्होंने उसी वक्त कहा कि मुझे कुछ सॉलिड अगर काम लेना हो तो आया करो वरना मत आया करो। तो मैं तालियों के साथ जनाब आबिद रसूल खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो ऐसे कायद हैं, वरना होता ही नहीं तो शायद चाहता है कि सिर्फ मेरे पास फोटो खिंचाओ और अखबार में छपाओ चले जाओ, लेकिन ये कहते हैं कि मेरे पास आओ तो कुछ मसाइल हल करना है कौम मिल्लत के लिए तो आओ वरना मत आओ। तो ऐसे अगर कायद को अगर आप छोड़कर ये परेशान दर बदर फिरना है और हम परेशान रहते हैं तो फिर हमारे साजिद साहब का ही एक मिसरा बता दूं मैं, दाग तो चेहरे पे हैं क्या आईना पोछा करें। तो ये बहुत अहम मिसरा था जो मेरे दिल को लगा। और जिस वक्त हम सेक्रेटरीट पहुंचे वक्त के साथ, उसी वक्त आबिद रसूल खान साहब ने डीओ हैदराबाद के सुबा रेड्डी उसी वक्त हिदायत दी कि देखिए जो आपका कानून है वो आप कानून पर अमल कीजिए। लेकिन इस वक्त अगर हम ये नुमाइंदगी किए थे कि हजारों स्कूल स्टूडेंट्स उस पर नुकसान हो जाएगा, वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे, तो उसी वक्त उन्होंने उस डीओ को हिदायत दी कि इस साल उनको स्कूल बंद करने की जो नोटिस दी गई है स्कूल बंद करना नहीं चाहिए। और इंशाल्लाह अगर आप रेगुलेशन जो चाहिए वो भी आप तजवीज दे सकते हैं, और जो स्कूल बंद करना चाहते हैं उस बारे में भी और दीगर मसाइल के बारे में भी आबिद रसूल खान साहब ही बेहतर अंदाज में अगर हमको बता दें तो शुक्र अदा। मैं जनाब आबिद रसूल खान साहब चेयरमैन माइनॉरिटीज कमीशन से गुजारिश करता हूँ कि वो आपको मुखातिब करें। सोसाइटी के जो सदर हैं और रियाज साहब, साजिद साहब और आदमी नगर साहब, स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक मौका दिया आपके बीच में आने का और मेरे ख्याल का आप तक पहुँचाने के लिए। यहाँ पे जो दो स्पीचेस मैं सुना हूँ, एक TRS के MLC मेरे दोस्त महमूद अली साहब की और साजिद साहब की, तो काफ़ी उनके दिल में दर्द है, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ महमूद भाई मुसलमान के मसलों पर बात किए और कैसा उनको शेयर कर रहे हैं, कैसे उनकी कोशिशें आगे बढ़ रही है, कैसे हमें चलना है। मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जज्बात से उन्होंने बताया और मैं भी बड़े गौर से सुना, आप सभी सुने हैं। और दूसरी तरफ साजिद साहब बिल्कुल ही एक तरीके से बताए हैं कि गवर्नमेंट और हुकूमत स्कूलों के खिलाफ है, स्कूलों को बंद कर दे रही है, कॉरेस्पॉन्डेंट को जेल तक पहुंचा दे रही है और बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल ही मैंने देखा उनके अल्फाज में रोकते हैं और कुछ होगा नहीं। मैं ये चीज़ को एक दूसरे अंदाज में आपको बताना चाहूँगा कि हर चीज़ के दो रुख होते हैं। एक रुख जो हम चाहते हैं, एक रुख जो असलियत है। असलियत ये भी है कि स्कूल के मैनेजमेंट करोड़ों रुपए बच्चों के ड्यूज कर रहे हैं, स्कॉलरशिप्स आने के बाद भी स्कॉलरशिप तक उनको महरूम रखने के फीस कलेक्ट कर रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी जगह पे स्कूल चला रहे हैं जहाँ पे पैर रखने की भी जगह ना हो और बच्चों को वहाँ तक आप पहुँचा रहे हैं। उसके बाद खुदा हादसा कहीं आग लग जाती है या कुछ होता है तो हमको फिर गवर्नमेंट को भी उठाते हैं कि आप क्या कर रहे थे, देखे क्यों नहीं। तमिलनाडु में हुआ था हादसा जहाँ पे 100 बच्चे जल गए थे, उसी तरीके से दूसरे शहरों में भी हादसे हुए। तो गवर्नमेंट जो रूल बनाती है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हो, मेडिसिन के हो, स्कूल्स के हो, तो स्टैंडर्डाइज रूल्स होते हैं और उसके तहत स्कूल चलना है। उसके तहत सैलरी टीचर्स को देनी चाहिए, उसी तरह फीस के फिक्सेशन होती है, उसके तहत कैपिटेशन फीस को रोकने के लिए करते हैं। मगर जब जनरलाइज रूल होता है तो काफ़ी हद तक उसमें एग्जम्पशंस भी हम मांग सकते हैं, हालात को देखते हुए, महलों को देखते हुए, जैसा साजिद साहब बता रहे थे, स्लम्स को देखते हुए। मगर तरीके से स्टैंडर्डाइज ये बता देना है कि भाई ये सब बिल्कुल गलत हो रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूँ ये एक परेशानी में आप जो बोल रहे हैं आपकी परेशानी को मैं इज्जत करता हूँ और वो परेशानी में आपके साथ हूँ मैं। अगर हम इस तरीके से एक जनरलाइज स्टेटमेंट बताते हुए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी हमारे खिलाफ कर लेना या हुकूमत को भी हमारे खिलाफ कर लेना सही बात नहीं। हमारे मसले जो हैं, जब मैं आपके साथ हूँ, जब पूरी कम्युनिटी आपके साथ है और MLA MLC आपके साथ हैं तो मसले सॉल्व हो सकते हैं। बैठ के बातचीत करना चाहिए।
ऑफिसर्स को कन्विंस करना चाहिए क्योंकि हुकूमत के आप खुद भी जानते हैं हुकूमत के दो हिस्से होते हैं, एक पॉलिसी बनाना और एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना। पॉलिसी बनाना पार्टी और गवर्नमेंट करती है, इम्प्लीमेंट करना ऑफिसर्स करते हैं। तो पॉलिसी बनाने में इम्प्लीमेंटेशन में भी काफ़ी दरबदर हो जाता है। कुछ एक मकसद से पॉलिसी बनती है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ और एक मकसद से होता है। तो अभी जितनी भी स्पीचेस में सुना हूँ आपके सब मसले जो सुना हूँ उसमें दो किस्म के मसले मेरे सामने आए हैं। मैं रिज्यूम कर रहा हूँ कि भाई ये दो है। एक प्राइवेट स्कूल के प्रॉब्लम अनरिकग्नाइज, इस पे यहाँ पे स्पीचेस देने से कुछ नहीं होगा, मीडिया में बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको बोलना है, ऑफिसर्स के साथ बैठना है, राय मशवरा करना है, पेरेंट्स के साथ बैठना है, राय मशवरा करना है और एक सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना है। इसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं तो पूरे मैनेजमेंट अगर एक जगह आते हैं तो यहाँ पे आला ऑफिसरों को बुलाएंगे, कंसर्न मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी आइए, मीडिया को बुलाएंगे और वहाँ पे 2-3 घंटे आप लोग अपने मसलों पे बात कीजिए। मैं भी प्रेजेंट करता हूँ, जो भी आप लोगों के मसले हैं इंशाल्लाह उसमें हम कुछ ना कुछ आप लोगों की मदद करने के लिए कोशिश करेंगे। और हुकूमत भी मैं समझता हूँ किरण कुमार रेड्डी साहब की क़यादत में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसमें स्कूल बंद हो जाए, बच्चों रोड पे आ जाए या टीचर्स को जेल में डाल दिए। करस्पॉन्डेंट की जैसा बता रहे, इसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि अगर ऐसा कोई कदम उठा दिए तो मैं बराबर इंटरवीन करने के लिए तैयार हूँ। रूल्स बदलना है और रूल्स को कुछ आप तब्दीली चाह रहे हैं, रूल्स में कुछ वो चाह रहे हैं तो इसमें बैठ के बातचीत करना, एक डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। और आप लोग पूरे एक प्लेटफॉर्म पे आना भी जरूरी है, चाहे एक मकसद के लिए चाहे आप लोग पूरे एक स्कूल मैनेजमेंट एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एक ग्रुप करिए और एक कोर कमेटी बनाइए। जो कोर कमेटी के नुमाइंदे हैं वो गवर्नमेंट से रुजू होइए और एक मीटिंग कन्वीन करिए और बैठ के हम राय मशवरा करेंगे, आने वाले दिनों की पॉलिसी बनाएंगे। और आपकी जो तजवीज़ है कि ए कैटेगरी करिए, बी कैटेगरी करिए, स्लम्स के लिए अलग रखिए, बहुत अच्छे तजवीज़ है। स्लम्स में ज़रूरी है कि हम कुछ रिलैक्सेशन दें, माइनॉरिटीज़ के लिए ज़रूरी है हम रिलैक्सेशन दें और माइनॉरिटी एजुकेशन को प्रोटेक्ट करें, ये सब चीज़ के लिए उर्दू को प्रोटेक्ट करें, ये सब चीज़ के लिए काम करने के लिए तरीका बेटर ये है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने मुझे बताइए और मैं मीटिंग कन्वीन करता हूँ, चाहे वो आप कल भी चाहे तो कल भी कन्वीन करता हूँ, जहाँ पे हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर और आपके जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के आला अधिकारी है उसको बुला के बैठ के राय मशवरा करके उनके वर्जन आप सुनिए, आपके वर्जन को सुनते हैं, फिर जरूरत पड़ेगी चीफ मिनिस्टर तक भी नुमाइंदगी ले जाएंगे और बात करेंगे, बात करके आपके मसले सॉल्व करेंगे, बच्चों के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी बात उर्दू के बारे में है। उर्दू के बारे में बहुत ज़्यादा हम भी इसके बारे में कंसर्न हैं और उर्दू को बचाना है, उर्दू को आगे लेके चलना है। आप जैसा बताया डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड लैंग्वेज, मैं भी इस पर काम कर रहा हूँ। अगर आपके पास स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे स्कूल्स में उर्दू नहीं पढ़ाई जा रही है, आपके पास स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे टीचर्स नहीं हो, आप माइनॉरिटी कमीशन को उर्दू हो, ये कंप्लेंट वाइट पेपर पे लीजिए, हम सब्जेक्ट को लेकर करते हैं इमीडिएटली गवर्नमेंट को टीचर्स वहाँ पे पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे, हो सका तो ऑर्डर दीजिए। मगर आपको इस पर भी एक उर्दू के ऊपर भी एक बैठ के इंटरेक्शन करना है गवर्नमेंट से, उर्दू अकेडमी को जगाना है, उर्दू अकेडमी को हमारे साथ देना है, लेके इसमें भी काफ़ी काम करना है। ये काम भी कुछ इंटरेक्शन से और मीटिंग से और डिस्कशन से आगे बढ़ सकता है और मैं इसके अंदर भी कमिटेड हूँ कि आपके साथ मिलकर इसमें भी काम करने के लिए। तीसरी चीज़ स्कॉलरशिप की है। स्कॉलरशिप का मसला बड़ा अलग ही है और स्पेशली माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का। इससे पहले तक कंप्लेंट्स आ रहे थे मैनेजमेंट पैसे खा ले रहे, बच्चों तक नहीं पहुँचा रहे और बच्चों से डबल फीस ली जा रही है और बच्चों से फीस तो ली जा रही है और स्कॉलरशिप आने पर वापस नहीं हो रही है। गवर्नमेंट इस पर एक नई तजवीज़ करेगी, बच्चों के स्कूल का अकाउंट तक हम स्कॉलरशिप देंगे। अब कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि बच्चों तक ये पहुँच रहे हैं, बच्चे नहीं भर रहे हैं, तो जॉइंट की बात हो रही है। तो ये एक पॉलिसी डिसीजन है, इसके ऊपर भी आपको बैठ के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, सोशल वेलफेयर से, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से, हो सका तो दिल्ली की गवर्नमेंट से बातचीत करके अगर ये पॉलिसी डिसीजन बनता है तो ये साल के लिए आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जॉइंट अकाउंट, मगर मैनेजमेंट जिम्मेदारी लेंगी क्या पूरे जॉइंट अकाउंट खुलाने की, और जब अकाउंट खुल जाएंगे तो फिर जिम्मेदारी लेगी क्या स्कॉलरशिप प्रोसेस करने की और बच्चों को नहीं सताना है, क्योंकि फिर बच्चों को स्कॉलरशिप आप जो बोल के फोर्स कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी एक गुजारिश चला रहा हूँ, स्कॉलरशिप का डिमांड होता है, जब डिमांड हुए बाद से बच्चे परेशान रहते हैं, स्कॉलरशिप का भी डेट आती है। ये सब चीज़ों पे एक राय मशवरा, एक डिटेल्ड मीटिंग अगर आप चाह रहे हैं तो इस पर भी बात करेंगे और इस पर भी आप अपनी नुमाइंदगी करिए आप लोगों की तरफ से, पूरे एसोसिएशन की तरफ से। चौथी चीज़ है बजट की।
यहाँ पे मैं बिल्कुल सीधे अल्फाज में ये बताना चाह रहा हूँ कि 500 करोड़ गुज़िश्ता साल के बजट में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लेथार्जी बोलिए या उनकी फेलियर बोलिए या उनका इंटरेस्ट नहीं था तो 200 करोड़ वापस है।